श्रीकला रेड्डी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं जौनपुर से। श्रीकला रेड्डी जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। नमस्कार जी नमस्कार। श्रीकला रेड्डी जी, जो आज जो तस्वीरें, जो एक वायरल वीडियो सामने आया, जिसके बाद पूरी उत्तर प्रदेश में एक बड़ी सियासी राजनीतिक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो गई, आपका फर्स्ट रिएक्शन, क्योंकि परिवार की तरफ से पहला रिएक्शन है जो मैं चाहूंगा आप रखें, क्या कहना आपका इस वीडियो पर? ये एब्सोल्युटली गलत है। दिस इज अ वेरी रॉन्ग दिस थिंग बिकॉज दिस इज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड थिंग है एंड आई डोंट एग्री टू दिस बिकॉज व्हेन हिज नेम केम अप नेक्स्ट डे ही सरेंडर्ड। अगली दिन वो अपने आप को सरेंडर करके 1 महीना ही वाज इन द जेल। एट दैट टाइम हिज लॉयर पुट इट अप इन द कोर्ट आस्किंग अगर कुछ इंक्वायरी है तो इनको दे कैन टेक हिम इनटू कस्टडी एंड आस्क हिम, बट 1 महीने के अंदर भी कोई इंक्वायरी का कुछ नहीं आया है और वी डिडंट रिसीव एनीथिंग। So that shows that there is no, when do you, I just want to ask you, when do you have a reward? Only when a person is absconding, missing, and they are not ready to answer to the police department, that is when it is called a reward, right? जी, लेकिन बड़ा सवाल श्रीकला जी ये है कि पुलिस कह रही है कि हम जांच करेंगे इस वीडियो की, और पुलिस तो बिल्कुल, पुलिस का कहना है कि हम बिल्कुल ढूंढ रहे हैं धनंजय सिंह को लखनऊ के केस के सिलसिले में, और जिस केस में सरेंडर धनंजय सिंह ने किया था वो तो कोई और मामला था, वो 2017 का केस था वो। No, they actually also asked him, the lawyer also put it up into the court asking them, even in this if you have any inquiry please take him into custody. When 1 month the person is surrendered himself, where is the question of all these things? And I believe in the law system and my husband believes in the law system and in the police department. There are still inquiries going on. There's nothing on him there. Probably that's why they didn't come up with anything. I think we should not politicize the institutions. लेकिन let them do their work. If there is something against him, he will definitely, when they call him for an inquiry, he is always available. He will go answer. पुलिस तो कह रही कि हमें धनंजय सिंह मिल ही नहीं रहे हैं, कहाँ हैं वो, हम तो ढूंढ रहे हैं। No, I don't think so. That is right. He was with them for 1 year, 1 month, right? He surrendered himself. Everybody knows about it. How can they say they don't know where he is? See, more than anything, I think, I don't want to say this, but sometimes it happens like, even the media keeps doing all these things. जी श्रीकला जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जो कुछ कहा उस पर आपका क्या कहना है? समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि एक तरह से पुलिस शेल्टर कर रही है धनंजय सिंह को। ये गलत है। This is absolutely wrong. Mr. Akhilesh Yadav ji was a CM and he should also know that before tweeting something, he can always inquire. What is the facts? What is going on there? Without knowing, you'll just tweet. And what is necessary? He's a leader of one of the popular parties and well-known parties in Uttar Pradesh, and I think they're very insecure, and I feel that they are never going to come back to power this time also. So they just want to take any small incident, and probably they want to just say that put this thing on our Mukhyamantri ji, saying all these things and talking about the police department that they're sheltering and all that. They don't need to shelter. If they call him for inquiry, he's always present. Everybody knows. जी, लेकिन श्रीकला जी, जो ये वीडियो चल रहा है, जो वायरल है सोशल मीडिया पर, तो क्या वो क्रिकेट टूर्नामेंट में गए थे धनंजय सिंह? कैसे क्रिकेट टूर्नामेंट में? या ये पुराना वीडियो है, नया वीडियो है? नहीं, ये नया वीडियो है and he is for public. He is a democratic person and he always works for public and he is there for public all the time. He does a lot of work for public there. How did he get 70,000 votes last time in by-election as an independent? How did I win as an independent? Because of all the good works that he's done in the constituency. He always stands by all the poor people and he works and he's a patriot and he believes in our, the law system. जी, श्रीकला जी, आप excuse me, I'm sorry to interrupt you, sir. I'm sorry to interrupt you, but please every continue. time there are elections, this is what happens. Even before, the same thing happened before elections. ये जो
even by-elections time maybe. Before that, again they try to, his opponents, they Right. always try all their ways to do the same drama in and again. Now Right. again elections, this is the whole drama for the upcoming elections of 2022. जी श्रीकला जी, एक और बड़ा अहम सवाल यह है कि आपने कहा कि ठीक है ये वीडियो ताज़ा है, यानी कोई ऐसा नहीं है कि पुराना वीडियो है, लेकिन पुलिस कह रही है कि हम तो जांच करेंगे कि वीडियो कब का है, हो सकता है पुराना वीडियो हो। और दूसरी बात श्रीकला जी देखिए, ये बात साफ है, Then we should ask- धनंजय सिंह की तलाश पुलिस कर रही है रिकॉर्ड्स के मुताबिक। क्यों नहीं उनको पूछताछ कर रही है, उनसे क्यों अरेस्ट नहीं कर रही है, ये पुलिस महकमा जाने या धनंजय जी जानेंगे। हाँ, इतना जरूर हम चाहते हैं कि आपका पक्ष भी आए, क्योंकि देखिए इलेक्शन हो रहे हैं और मैं उत्तर प्रदेश के चुनाव कई सालों से कवर कर रहा हूं और मैं बड़े दावे के साथ इस वक्त भी कह सकता हूं कि जब जौनपुर में बात आती है इलेक्शन की, तो धनंजय सिंह जौनपुर में एक फैक्टर है, भले ही कोई माने ना माने, ये हकीकत है। Yes. दिस इज द रियलिटी। अब क्योंकि he इस is सच को people's कोई man. किसी तरीके से माने, लेकिन हमारा जो आज का सवाल ये है कि अब ठीक है चुनाव आ गए, आपने कहा समाजवादी पार्टी इसलिए पॉलिटिसाइज कर रही है इस पूरे इशू को, लेकिन सवाल ये है कि जब ये आरोप ये लग रहे हैं कि पुलिस शेल्टर कर रही है धनंजय सिंह को, कि ठीक है एक मामला था जिस मामले में वो एक महीने जेल में रहे, वो तो खुटहन का मामला था, कोई दूसरा मामला था। जिस मामले में वो फरार है, उस मामले में उनको अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया। No, when he surrendered himself, when he was in the jail, they had 1 month time. If there was anything really like that, they could have come up, right? They did not, because they could not find anything, and he is innocent in this case, and he has nothing to do with this case. यानी श्रीकला रेड्डी जी, आपका ये His enemies, his opponents, his enemies, whoever are there, are actually trying to, do this all the time. ठीक है, इससे पहले भी from many years they try to do the same thing with him, try to always, falsely try to, do all this thing against him, false cases लगा के and this thing, but he always came out clean. जी। तो लेकिन मैं बार बार यही बात कह रहा हूं कि अब इस पूरे मामले में राजनीति तो शुरू हो गई है, लेकिन सवाल यह है कि जो मामला है, क्योंकि अभी आरोपी, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ सब वो अपराधी हैं, उनको घोषित कर दिया, या अभी वो आरोपी है इस मामले में, लेकिन सवाल यह है कि They are still investigating it, sir. They are still investigating it. So we need to have the patience. We need to let the police department do their work. तो आप क्या कह रहे अगर हैं भाई कि साहब, धनंजय सिंह जौनपुर में है, वो सब लोगों से मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, पुलिस आए और उनसे पूछताछ कर रहे हैं, आप ये कह रही हैं जब पूछताछ करना चाहे आज अभी तक yeah, he is in Jaunpur and he is of course within the public of Jaunpur. जी। तो आपकी मुलाकात कब हुई, क्योंकि अब तो आप भी राजनीति में लगातार दौरे आप क्षेत्र में कर रही हैं। Yes. जी। Yeah, I'm in my constituency and I'm working in my office. जी। And we are doing very good work for Jaunpur. श्रीकला जी, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति है, कैसे रास आ रही है आपको, क्योंकि यहाँ तो हर रोज नई बात, नया मुद्दा, नई खबर और इस तरह का नया विवाद। As long as हम लोग गलत नहीं करते हैं, you don't have to get scared about anything. That is what my husband does. He only stands by the right and he always works. All the time, every time, अभी तक आप देख लीजिए, they try to fix him in false cases, बस. Even before I told you, even before his by-election also the same thing happened. जी। But he came out clean. जी, चलिए, तो आपका कहना है कि विपक्ष के आरोप निराधार है, जो विपक्ष बार बार कह रहा है, लेकिन आप ये मान रहे हैं कि वीडियो ताजा है, कल का वीडियो, और आप ये भी कह रहे हैं कि धनंजय सिंह जौनपुर में पुलिस आए और उनसे पूछताछ कर ले। लेकिन ये हमारी उत्तर प्रदेश की पुलिस है जो कह रही है कि अभी वो इस वीडियो को इन्वेस्टिगेट करेगी। ये पुराना वीडियो तो नहीं है, कब का वीडियो तो नहीं है, लेकिन फिर भी श्रीकला रेड्डी जी, ऑन वेरी ट्रू नोट, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि इस पूरे मसले पर आप बात करने के लिए तो सामने आए, क्योंकि हमारा मकसद, एबीपी गंगा का मकसद, हम लोग कोई भी खबर जब करते हैं, ये हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है कि हम लोग दोनों पक्षों की बात सुनते हैं। तो इसलिए एक पक्ष की बात तो सुबह से हम सुना रहे थे, लेकिन दूसरा पक्ष आप हैं, आपने नजरिए से बात सामने रखी, जो पुलिस रिकॉर्ड में बात है वो भी हम बात कर रहे हैं, पुलिस अधिकारियों के रिएक्शन भी हमने सुनाए। लेकिन अब एक आखिरी सवाल आपसे, क्या इस बार के चुनाव में धनंजय सिंह प्रचार करेंगे? किसके लिए नहीं, ये नहीं, मैं नहीं पूछ रहा हूं, क्या कहना है आपका? Yes, प्रचार करेंगे, and हो सके तो he will also contest, and this time in Jaunpur में SP is not going to win any seats.
the kind of what they are doing like this, the people are going to give them a verdict, and they are not, all the 9 seats they will not get 1 seat in them. क्या लग रहा है आपको उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनते हुए देख रही हैं आप? अभी क्या लग रहा है आपको? बीजेपी का, बीजेपी की सरकार, ये बड़ी बात कह रही हैं आप। yes. जौनपुर तो So, समाजवादी yes, पार्टी का गढ़ रहा है। That's my personal opinion. जी ठीक है श्रीकला रेड्डी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। तो श्रीकला रेड्डी हमारे साथ मौजूद थी, धनंजय सिंह की पत्नी, जिन्होंने खुद इस बात को माना कि ये वीडियो नया है, ताजा है, कोई पुराना वीडियो नहीं है। भले ही पुलिस से बात कह रही है कि साहब वीडियो की जांच करेंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि धनंजय सिंह जौनपुर में है, जनता के बीच में है, और उन्होंने बिल्कुल कहा कि वो चुनाव लड़ भी सकते हैं। ये बात भी उन्होंने कही, और अपना पूरा पक्ष भी अपने नजरिए से जो उनको ठीक लगता है, या जो उनके पास जो तमाम बातें हैं उस लिहाज से उन्होंने वो अपना पक्ष रखा कि, लेकिन ये बात उन्होंने साफ की कि धनंजय सिंह जौनपुर में है, भले ही उत्तर प्रदेश पुलिस ये कहे कि हम वीडियो की जांच कर रहे हैं। बहरहाल इस वक्त प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय लल्लू साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय लल्लू